اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول قبل کل اول الآخر بعد کل آخر المعروف من غیر رویہ الخالق من غیر رویہ الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماع ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو فجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو تماد ذالک مبتدئ الخلق ووارثہ والہ الخلق ورازقہ الصلاۃ والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی الطہمی السید البہی السراج المضیء الکوكب الدری البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر العلم الظاہر البحر الزاخر المنصور المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد وعلى سید المطہر والامام المظفر وشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبى وسقر على شجاع المتین الامام المبین الاشرف المکین نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلى سیدۃ النساء الانسیۃ الحوراء ام الائمۃ النقباء النجبہ بنت خیر الانبیاء الطاہرۃ المطہرہ البتول العذراء الصدیقہ بالاقوال الرضیہ بالمقالہ المرضیہ بالدلالہ الراضیہ بالعدالہ سیدۃ النسوان حبیبۃ حبیب الرحمن فاطمۃ الزہراء لعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وفضیلتہم وولایتہم وطہارتہم وسخاوتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجدہون لک فی النوائب کل ہم و غم سے انجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی و یا علی و یا علی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما سألتکم من اجر فہو لکم صلوات پڑھے محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، خدا آپ سب کی آمد کو قبول کرے۔ کچھ مومنین اور کچھ مومنات نے خاص کر کے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے کہ پروردگار جن جن لوگوں نے بھی ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اور جتنے مومنین ہیں جتنے مومنات ہیں اس دنیا میں، ان تمام کو سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائے۔ آج آخری گفتگو ہے اس سلسلے کا آخری مرحلہ ہے۔ ہم سے تو کہا گیا ہے کہ فضائل بھی پڑھیں جیسے پڑھ رہے تھے، لیکن آج خاص کر کے مجھے مصائب پڑھنا ہے۔ بس فضائل اس لیے پڑھنا ہے تاکہ آنے جانے والوں کا یہ سلسلہ رک جائے اور لوگ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں اور متوجہ ہو جائیں مصائب کے لیے۔ اس لیے چند لمحے آپ کے فضائل میں لوں گا اور اس کے بعد خاص کر کے مصائب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ
اللہ اس آیت کے ذریعے سمجھا رہا ہے کہ جو بھی آل محمد سے محبت کرتا ہے تو اسے محبت کا فائدہ ملتا ہے، اسی کو ملتا ہے، آل محمد کو نہیں بلکہ محبت کرنے والے کو فائدہ ملتا ہے۔ اور وہ باتیں مجھے دہرانا نہیں ہے جو آپ مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں، اور جو صرف آج ہی آئے ہیں وہ بعد میں لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں، وہ باتیں دہراؤں گا تو وقت زیادہ چاہیے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ فائدہ انہی لوگ کو ہے جو آل محمد سے محبت کرتے ہیں۔ ہر محبت میں انسان کو نقصان ہوتا ہے، مگر آل محمد کی واحد وہ محبت ہے کہ جس میں کوئی نقصان نہیں ہے سوائے فائدے کے۔ آپ کہیں گے دلیل، تو دلیل یہ ہے کہ جب دنیاوی محبتوں میں انسان ڈوبتا ہے تو دولت خرچ کرتا ہے تو گھٹتی ہے، مگر جب حسین کی محبت میں ڈوب کے دولت خرچ کرتا ہے تو بڑھتی ہے۔ کیا ان عزاداروں میں کوئی ایسا ہے جو ہاتھ اٹھائے اور کہہ دے اس سال میں نے محرم میں سب خرچ کر دیا، بچے بھوکے مر رہے ہیں؟ کسی نے کہا؟ کوئی ہے ایسا کہ جس کے یہاں ایسا ہوا ہو کہ اس نے سب محرم میں خرچ کر دیا ہو اور بچے بھوکے ہوں؟ کہا نہیں، سب خرچ کیا تو دونا مل گیا۔ اور کر رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی راہ میں جو بھی خرچ کیا جاتا ہے اس کا فائدہ ملتا ہے۔ دنیا کہہ دیتی ہے کہ یہ پیسہ اتنا تبرک میں خرچ کر دیا، اتنا مجلسوں میں خرچ کر دیا، یہ کسی غریب کو دے دیا جائے۔ غور کیجئے گا میرے نوجوان بھائیوں، بزرگوں کی خاص دعائیں چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، ان کی دعائیں بس کافی ہیں۔ نوجوان بھائیوں میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، جو جہاں سے سن رہا ہے بغور سنے۔ کا مجلس اتنا تبرک بانٹ دیا، اتنے پیسے خرچ کر دیے، کسی غریب کو دے دیتے اس کی مشکل آسان ہو جاتی۔ جملہ حقیقت ہو تو بولیے گا، تائید کیجیے گا۔ کسی غریب کو دے دیتے، اتنا پیسہ مجلسوں میں خرچ کیا، تبرک بانٹ دیا، کسی غریب کو دے دیتے اس کی مشکل آسان ہو جاتی۔ تم کہہ رہے ہو غریب کو دے دیتے مشکل آسان ہو جاتی؟ کبھی غریب سے پوچھا ہے کہ میں نے یہ مجلس کاٹ کے تبرک کا پیسہ دیا ہے، لوگے؟ وہ غریب لے گا، اسے بتاؤ تو پہلے۔ وہ خود کہے گا میں تو خود سال بھر جمع کرتا ہوں کہ حسین کی مجلس کرنا ہے، تو میں مجلس کو کاٹ کے پیسہ لوں گا؟ یہ پیسے پہ ناچ کرنے والے لوگ اور ہوتے ہیں، عزادار اور ہوتے ہیں۔ غور کیجئے گا میرے عزیزو، کہا اتنا تبرک میں بانٹ دیا، غریب کو دے دیتے، غریب کو دے دیتے۔ بھائی آپ نے بھی بیٹی کی شادی کی ہے، اتنا جہیز دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے کیوں نہ غریبوں کو بانٹ دیا؟ کیوں نہ غریبوں کو دے دیا؟ اچھا آواز آئے گی اگر نہ دیتے تو زمانے کو منہ کیسے دکھاتے؟ یعنی بیٹی پر اگر نہ خرچ کیا جائے تو زمانے کو منہ نہیں دکھا سکتے ہیں، تو ذرا سوچیے اگر حسین کے نام پہ نہیں خرچ کریں گے تو زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میرے عزیزو باتوں کو یاد رکھیے کہ ساری باتیں انسان کو عزاداری میں یاد آتی ہیں، اتنا تبرک، اتنا خرچہ، باقی نہیں یاد آئے گا۔ ہر مہینے موبائل بدلیں گے تب نہیں یاد آئے گا، ہر مہینے گاڑیاں بدلی جائیں گی تب نہیں یاد آئے گا کہ غریب کی مدد کر دی جائے۔ عزاداری برداشت نہیں ہوتی ہے۔
मातमदारी बर्दाश्त नहीं होती है, तबर्रुक बर्दाश्त नहीं होता है। क्यों? ये क्यों एतराज हो रहा है? का ये साबित करने के लिए कि हम अलग हैं, हम अलग हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम आपसे अलग हैं, तो हम भी दुआ करेंगे परवरदिगार महशर में भी आपको अलग ही रखे। सलावत तो पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पा। गौर फरमा रहे हैं आप, ये आजादारी बहुत अहम है। इसी से दुनिया खौफजदा है, डरती है, क्योंकि इनके पास एक सिपर मौजूद है, एक शीशा पिलाई हुई दीवार है जिसका नाम है अज़ाए हुसैन। इन पे हमला करने के लिए, इनको मारने के लिए इस दीवार को तोड़ना पड़ेगा, और यह दीवार कभी टूट ही नहीं सकती है, इसलिए कि इस दीवार की जमानत खुद खुदा ने ली है, खुद शहजादी ने। इस दीवार को कोई नहीं तोड़ सकता। आजादारी ये कोई ना सोचे कि हम कर रहे हैं तो हो रही है, नहीं। आजादारी आपकी वजह से थोड़ी है, आप आजादारी की वजह से हैं। आजादारी आपकी वजह से नहीं है, आप आजादारी की वजह से हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो क्या सोचते हैं कि आजादारी नहीं होगी? होगी आजादारी। आप छोड़ देंगे तो क्या जिन्नात भी आजादारी करना छोड़ देंगे? आप छोड़ देंगे तो क्या मलाइका भी छोड़ देंगे? आप छोड़ देंगे तो क्या शजर, पेड़, फल ये सब छोड़ देंगे अज़ाए हुसैन? अरे अगर हम जिक्र अहले बैत नहीं करेंगे तो मिंबर खुद बोलने लगेगा। और हमारे अहले बैत किसी के मोहताज थोड़ी है। अहले बैत मेरे अजीजों, ये हमारी पहचान है। एक अज़ाए हुसैन और एक विलाए जनाबे अमीर, ये दो हमारी पहचान है। और तमाम उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि उससे बड़ा बदबख्त कोई इंसान ही नहीं है जो अपनी पहचान को खो दे। गौर कर रहे हैं? उससे बड़ा बदबख्त कोई इंसान नहीं जो पहचान खो दे। और हमारी पहचान है अज़ाए हुसैन, विलाए जनाबे अमीर। अल्लाह ने विलायत का अहद सबसे लिया है, वहां सबसे लिया है, तमाम रूहों को जमा किया और सब पर विलायत अली को पेश किया। जिसने कबूल किया उसे फजीलत दे दी। यहां तक कि पूरी कायनात की हर शय को जमा करके विलायत को पेश किया। जिसने कबूल कर लिया और जितना पहले कबूल किया उसको उतनी ही ज्यादा फजीलत मिली। पानी पर विलायत को पेश किया। जिस पानी ने विलायत अली को कबूल कर लिया, मीठा बना दिया। गौर कर रहे हैं? फलों पर विलायत को पेश किया। जिन फलों ने कहा अलीउन वलीउल्लाह, मीठा बना दिया। जमीन पर पेश किया। जिस जमीन ने कहा अलीउन वलीउल्लाह, उसे सब्ज़ शादाब बना दिया। और फरमा रहे हैं आप, अल्लाह ने हर एक पर, पत्थरों पर पेश की विलायत अली। अब जुमला चाहे जैसे सुनिएगा, विलायत अली पत्थरों पर पेश की। जिस पत्थर ने कहा अलीउन वलीउल्लाह, उसे अकीक बना दिया। गौर कर रहे हैं आप? एक सलावत तो बड़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये कमाल है विलायत का, ये कमाल है विलायत का। अगर ये नहीं माना तो नबी से अल्लाह कह रहा है कुछ नहीं मांग। अगर ये नहीं पहुंचाया तो कुछ नहीं पहुंचाया। तो मैं भी कह रहा हूं, अगर ये नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना। अगर ये नहीं पढ़ा गया तो कुछ नहीं पढ़ा गया। गौर फरमा रहे हैं आप? ये बहुत जरूरी है। यही तो पहुंचाना है, यही तो लोगों को सुनाना है ताकि लोग इससे मुतमस्सिक रहें। गई, परेशान किया गया, और जब मुश्किल पड़ी तो आए फिर इसी दरवाजे पर। परेशान करने वाले भी परेशानी में इसी दरवाजे पर पहुंचे। मुश्किल पड़ी तो इसी दरवाजे पर आए। भाई आप देखिए जनाब सलमान,
बैठे हुए हैं दरबार में। एक शख्स आता है और कहता है नबी ने मुझसे वादा किया था, बहुत जल्दी जल्दी सिर्फ नतीजे देना है। नबी ने वादा किया था कि मैं 70 या 80 रवायतों में मुख्तलिफ जुमले हैं कि 80 ऊँटनियां दूंगा अगर तुम इतने लोगों को कलमा पढ़ा के ले आओ, अपनी कौम के लोगों को कलमा पढ़वा दो तो 80 ऊँटनियां दूंगा जिनकी सिफतें ये होंगी। कहा मैंने कलमा पढ़वाया, दीजिए। नबी तो है नहीं, नबी तो रुखसत हो चुके हैं। कहा आप दीजिए। कहा मैं कैसे दूं? जनाब सलमान ने बाजू पकड़ा, कहा मैं ले चलता हूं। दरे अली पर आ गए, आवाज दी, अब मांग, क्या मांगना है तुझे? अभी ये बातें हो ही रही थी कि अंदर से आवाज आई, सलमान अबू समसाम को लेके अंदर आ जाओ। गौर नहीं फरमाया आपने? आवाज दी, सलमान ये कौन है जो बगैर देखे मेरा नाम भी जानता है? कहे सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं जानता है, तुम्हारा पूरा शजरा भी जानता है, क्योंकि इसके सामने खाली तुम नहीं बने हो, कायनात इसी के सामने बनी है। कहा ये कौन है? कहा वारिस रसूल, आओ मांग लो। जैसे ही पहुंचे, ऊँटनियों का सवाल, मौला अली आवाज देते हैं, जाओ बेटा हसन, बोला पहाड़ी पर जाना, ठोकर मारना, नाकों की मेहार निकलेगी, रस्सी निकलेगी और वो रस्सी इसे दे देना। 80 ऊँटनियां निकलेंगी, ना ज्यादा होंगी ना कम। और फरमा रहे हैं आप, ना ज्यादा होंगी ना कम। दे दिया गया। जब भी कोई सवाल पड़ा इसी दरवाजे पर आए, मुश्किलान पड़ी इसी दरवाजे पर आए। गौर कर रहे हैं आप? इसका मतलब यह है कि गैर भी समझ रहा है कि मुश्किल कुशा यही है। इमाम का जमाना, 10वें इमाम, एक खातून ने, औरत ने दावा कर दिया कि मैं अली की बेटी हूं, नाम मेरा जैनब है। मैं अली की बेटी, नाम मेरा जैनब। तारीख में उसका नाम जैनब कज़ाबिया रखा गया, यानी झूठी जैनब। झूठा दावा किया था ना, झूठी जैनब। दरबार में पहुंच गई, का फैसला चाहिए, अली की जितनी चीजें मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैं अली की बेटी हूं, नाम जैनब है। बूढ़ी हो चुकी थी। कहा मैं इतने दिन जुल्म की वजह से खौफ था तो पोशीदा रही, आज निकल के आई हूं। तो एक मर्तबा, गौर कीजिएगा, एक मर्तबा बादशाह घबराने लगा कि अली की बेटी है। का फैसला कैसे हो? तो लोगों ने कहा अगर ये अली की बेटी होने का दावा करता है तो इस जमाने में एक अली का बेटा भी है। का तो वो कैसे फैसला करेगा? का उसे बुलाओ, फैसला हो जाएगा। इमाम के दरवाजे पर आए, सिपाही भेजे बादशाह ने, इमाम के दरवाजे पर आए, दक्कुल बाप किया। का दरबार में आपको याद किया गया। इमाम ने कहा चलो मैं आ रहा हूं। इमाम चले, आए दरबार में। जैसा ही दरबार में पहुंचे, बादशाह कहता है यह खातून है जिसने दावा किया है मैं अली की बेटी हूं। आप बताइए कि क्या यह सच्ची है? ये जो दावा कर रही है अपने दावे में सच्ची है, सही बोल रही है? तो एक मर्तबा मौला उसकी तरफ देखते हैं, आवाज देते हैं, क्या दावा किया है? कहा मैं अली की बेटी हूं, विरासत अली मुझे मिलना चाहिए। तो मौला ने कहा सच सच बता दे, अभी तक जिससे बात कर रही थी वो और है, मैं और हूं। कहा मैं सच बोल रही हूं, अली की बेटी हूं। कहा अभी भी समझ जा, वक्त है। कहा मैं सच बोल रही हूं। जब 3 मर्तबा उसने कहा तो मौला ने बादशाह को देखते हुए आवाज दी कि अपने सिपाहियों को भेजो और जंगल से एक शेर पकड़वा लो। कहा क्यों? कहा कि वो शेर इसके सामने छोड़ दो, अगर ये अली की बेटी है तो शेर इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, शेर इसे नहीं खाएगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि औलादे अली का गोश्त हैवानों पर हराम है। गौर कीजिएगा,
औलाद अली का गोश्त हैवानों पर हराम है। तो जैसे ही शेर की बात आई, वो औरत कहती है नहीं नहीं, मैं झूठ बोल रही थी, मैं अली की बेटी नहीं हूं। लेकिन बादशाह कोई चाहने वाला तो था नहीं। उसने सोचा कि ये भी तो दावा कर रहे हैं मैं अली का बेटा हूं, तो क्यों ना ये नुस्खा इमाम पे ही आजमाया जाए। उसने शेर पकड़वाए और एक गड्ढा खुदवाया, उस गड्ढे में शेर को रखा, ऊपर से खुला हुआ है, गड्ढे में शेर को रखा, भूखा रखा, प्यासा रखा। और उसके बाद चंद दिनों के बाद कहा कि अब इमाम को बुलाया जाए, अब इमाम को आजमाया जाएगा कि वो भी तो कहते हैं मैं अली का बेटा हूं, वो हैं कि नहीं है, गौर कीजिएगा, वो हैं कि नहीं। ठीक है, इमाम को बुलाया गया। इमाम चले, तमाशाई तमाशा देखने के लिए जमा है, गड्ढे के चारों तरफ लोग जमा। दुश्मन तो खुश हो रहे हैं कि अब तो जैसे ही इमाम नीचे उतरेंगे और शेर देखेगा 3 दिन का भूखा है, फौरन अपने मुंह का निवाला इमाम को माज़अल्लाह बना लेगा, नुकसान पहुंचाएगा और इमामत से मुझे छुटकारा मिल जाएगा, ये सोच रहे हैं। इमाम चले, इमाम जैसे ही सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं, ऊपर दुश्मनों में खुशियां मनाई जा रही हैं कि अब इमाम की जिंदगी के आखिरी लम्हे आ चुके हैं। लीजिए, जैसे ही इमाम नीचे उतरे, बिला तशबीह, मसलन इतना बड़ा गड्ढा है, उसमें उस कोने में शेर बैठा हुआ है और इस कोने में सीढ़ी लगी हुई है जिससे इमाम नीचे तशरीफ ले जा रहे हैं। गौर कीजिएगा, अब जैसे ही इमाम तशरीफ ले गए, शेर अपनी जगह से उठा, उधर लोगों में खुशियां मनाई जाने लगी कि अब तो शेर चला, इमाम को नुकसान पहुंचाएगा, इमाम को अपने मुंह का लुकमा बनाएगा। शेर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है, जितना शेर करीब हो रहा है उतना लोगों में खुशियां मनाई जा रही हैं कि माज़अल्लाह अब इमाम को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अचानक देखते देखते अजीब मंजर नजर आया। क्या देखा कि शेर बिल्कुल इमाम के करीब आता है और इमाम के कदमों पर अपने मुंह को रगड़ रहा है, इमाम के कदमों पर मुंह को रगड़ रहा है और कुछ कह रहा है। तो लोगों ने ऊपर से कहा कि मौला ये क्या कह रहा है। आवाज दी, ये तुम लोगों की शिकायत कर रहा है कि मौला इन लोगों ने मुझे भूखा रखा है, ये जालिम है, बचा लो। गौर कीजिएगा, ये जालिम है, इनसे मुझे बचा लो, इन लोगों ने मुझे भूखा रखा है। तो अब जुमला सुनिएगा तो एक मर्तबा आवाज दी कि ये तो शेर अगर कहना था तो वहीं से कह सकता था, आपके कदमों पे सर रखने की क्या जरूरत थी। आवाज आई, इसने सर नहीं रखा है, अच्छी नस्ल होने का सबूत दिया है। सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फरमा रहे आप मेरे अजीजों, इमाम, इसका मतलब यह है कि इमाम खाली इंसानों के इमाम नहीं है, कायनात के इमाम है। इंसानों के इमाम तो खाली इब्राहीम थे, इन्नी जायलुका लिन्नासे इमामा, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बना रहा हूं। अहले बैत जो ये 12 हमारे इमाम है, ये सिर्फ लोगों के इमाम नहीं है, पूरी मखलूक के इमाम है। और इमाम की इताअत हर एक पर लाजिम होती है, चाहे वो हैवान हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जिन्नात हो, हर एक पर इताअत लाजिम होती है। हम हैं औलाद आदम। बात को मुख्तसर कर रहा हूं, मैं जो सोच के आया था वो मैं नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि उसके लिए वक्त तवील चाहिए और वक्त बहुत कम है, इसलिए देर काफ़ी हो चुकी है। ज़माना पुराशोभ है, सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए ज़्यादातर मैं फ़ज़ाइल में कमी करूँगा, मसाइल में कमी नहीं करूँगा, इसलिए आखिरी मजलिस है। वो बातें फिर कभी अगर ज़िंदगी ने साथ दिया और मौका मिला तो अर्ज़ कर देंगे। हम औलाद आदम है ना, लायक औलाद वही होती है जो बाप की अच्छी बातों को अपना ले। बाप की अच्छी बातों को जो अपनाए वो लायक औलाद होती है। हम सब औलाद आदम हैं। आदम के 2 बेटे, एक का नाम हाबील, एक का नाम काबिल। काबिल ने हाबील को मार दिया,
قتل کر دیا، قتل کر دیا۔ آدم کو خبر ملی کہ بیٹے نے بیٹے کو مار دیا، فلاں جگہ قبر بنی ہے۔ جناب آدم اپنی جگہ سے اٹھے، آئے حابیل کی قبر پر، آنسو بہائے، روئے، گریہ کیا۔ غور کیجئے گا، آدم نے حابیل کی قبر پر گریہ کیا، روئے، آنسو بہائے۔ اٹھے تو ایسا ہی نہیں اٹھے، قابیل پر لعنت کرتے ہوئے اٹھے۔ اور نہیں فرما رہے آپ، قابیل پر لعنت کرتے ہوئے اٹھے۔ دونوں بیٹے آدم کے، دونوں بیٹے آدم کے، حابیل بھی آدم کا بیٹا، قابیل بھی آدم کا بیٹا، مگر آدم نے ایک بیٹے پر لعنت کی اور ایک پر آنسو بہائے، اور دنیا کو پیغام دیا کہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر ظالم ہو تو لعنت کرنا، مظلوم ہو تو آنسو بہانا۔ اس لیے ہم کبھی بھی ظالمین کا یہ تو قرآن کی باتیں ہیں نا، جو قرآن کی باتیں ہیں، اس سے تو کوئی دور بھاگ ہی نہیں سکتا، اور دور بھاگے گا تو اسلام ہی چھوڑنا پڑے گا، پھر کوئی نہیں بھاگ سکتا اس ظالم کا ساتھ۔ ہم علی والے نہیں دیتے، نہ کل دیا تھا نہ آج دیتے ہیں، کوئی بھی ظالمین کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، ہم مظلوموں کے حمایتی ہیں، ہم مظلوموں کے ناصر و مددگار ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ یہ ہے علی والے۔ ارے عزیزو، میں کیا کروں، اس وقت باتیں اتنی زیادہ ذہن میں ہیں، شہزادی کا خاص کرم ہے، لیکن دامن وقت اتنا تنگ ہے کہ کوئی بات اگر چھیڑنا چاہ بھی رہے ہیں پھر وہ تمام نہ ہو پائے تو فائدہ کیا ہے۔ بہرحال ساری باتوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ مظلوم ہے تو آنسو بہانا ہے، ظالم ہے تو اس سے دور رہنا۔ ظالمین کا ساتھ حق پرست کبھی نہیں دیتے۔ یہ انسانیت ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ظالمین کا ساتھ وہ نہیں دیتا ہے جو انسان ہوتا ہے، اس سے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جو بھی انسان ہے وہ ظالم کا ساتھ نہیں دے گا کبھی بھی۔ ہم ظالموں کے ساتھ تھوڑی ہیں۔ ہمارا یہ گریہ، یہ عزاداری، یہ تعزیہ داری، یہ علم، یہ تابوت، یہ جلوس، یہ مجلس، اسی بات کی دلیل ہے کہ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، ظالموں کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ ثبوت ہے۔ میرے عزیزو، یہ آپ کے آنسو بڑے قیمتی آنسو ہیں، یہ عزا بہت قیمتی عزا۔ کیسے کیسے ہم تک لوگوں نے عزاداری پہنچائی۔ روایت میں ہے ایک شخص ہر سال عزاداری کرتا تھا۔ ایک بار بادشاہ نے اسے قید کر لیا، کہا تو علی والا ہے، قید خانے میں اتنے دن رکھا کہ وہ کچھ بھی پیسے جمع نہیں کر سکا عزا کے لیے، عزاداری کے لیے۔ محرم کے 1 دن یا 2 دن پہلے رہا کر دیا۔ اب جب وہ گھر آیا تو مایوس بیٹھا ہوا ہے۔ بیوی نے پوچھا کیوں مایوس ہے؟ کہا اس لیے کہ میں ہر سال عزاداری اتنے بڑے پیمانے پر کرتا تھا، بہت ہی اچھے اچھے تبرک بانٹا کرتا تھا، اس سال ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا، کیا کریں؟ قسم خدا کی ایسی ماؤں پر بھی جانے قربان۔ آواز دی
کہ بس اس لیے مایوس ہو؟ کہا ہاں۔ کہا تو اللہ نے یہ بیٹا کس دن کے لیے دیا ہے؟ جاؤ بازار لے جاؤ جہاں غلام بکتے ہیں، غلام کہہ کے اسے بیچ دینا، جو پیسے ملے ہم عزائے حسین کریں گے، فرش بچھائیں گے۔ کہا تو ایک بار بیٹے سے تو پوچھ لیں کہ کیا وہ نام حسین پر بکنے کے لیے تیار ہے؟ بیٹے کو بلایا، بیٹا کہ میں بہت آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بیٹا کیا لے چلوں تمہیں؟ غلام بن کے بکو گے نام حسین پر؟ مسکرا دیا، کہا اس سے بڑا میرے لیے شرف کیا ہوگا کہ میں عزاداری کے لیے بک جاؤں، لے چلیے بابا۔ بازو پکڑا۔ جو یہاں پہ باپ بیٹھے ہیں نا، وہ کلیجوں پر ہاتھ رکھ کے سوچیں، تصور کریں کہ بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ کے بیٹے کا نام آپ کے سامنے کوئی بگاڑ کے لے لے تو آپ برداشت نہیں کریں گے کہ میرے بیٹے کا نام یہ ہے تو بگاڑ رہا ہے۔ ذرا سوچئے، باپ کے سامنے لوگ کہیں گے غلام غلام غلام۔ عزاداری ایسے ہی تھوڑی پہنچ گئی ہم تک، لوگوں نے قربانی دی۔ لیجئے، چلا آیا بازار جہاں غلام بکتے تھے، صبح سے شام تک کھڑا رہا، کسی نے اسے نہیں خریدا، کسی نے نہیں۔ مایوس ہو گیا کہ شاید اب کی عزاداری نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ کسی نے اسے خریدا نہیں، لیا نہیں تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے، تو اس انداز سے ہم عزاداری نہیں کر پائیں گے۔ کیا کریں؟ پریشان ہے، بے چین ہے، واپس آ رہا ہے، سر جھکا ہوا ہے۔ راستے میں ایک سوار ملا، بھائی کیا اسے بیچو گے؟ کہاں آیا تو اسی لیے تھا، مگر کسی نے خریدا نہیں۔ کہا کتنے کا بیچو گے؟ اس نے رقم بتائی، اتنے دے دیجئے۔ اس نے کہا کہ یہ لیجئے رقم دے دی۔ اس نے ہاتھ پکڑا بیٹے کا اور کہا کہ آج سے یہ آپ کا غلام ہے۔ تو کہا یہ آپ کا بیٹا ہے، یہ غلام؟ تو باپ کہتا نہیں، یہ میرا غلام تھا، میں نے بیچ دیا، آج سے یہ آپ کا غلام ہے۔ تو کہا ہم سے چھپانے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ وہ بیٹے کو لے کے چلا، ادھر یہ واپس گھر آیا، خوش ہے، لبوں پر مسکراہٹ ہے۔ بیوی سے کہتا ہے جلدی انتظام کرو، محرم کا چاند نکلنے والا ہے، فرش عزا بچھاؤ، مجھے پیسے مل گئے ہیں، ہم عزائے حسین کریں گے، ویسے ہی کریں گے جیسے کرتے تھے، میں نے بیٹا بیچا ہے، کریں گے ویسے ہی عزاداری۔ بیوی خوش ہے، ادھر سے فرش عزا بچھایا جا رہا ہے، ادھر سے انتظام ہو رہا ہے کہ ایک مرتبہ دق الباب ہوا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ جب کھٹکھٹایا، کھولنے کے لیے آگے بڑھے، دیکھا بیٹا دروازے پر کھڑا ہے۔ ایک مرتبہ باپ ناراض ہونے لگا، بیٹا تمہیں اگر یہی کرنا تھا تو پہلے بتا دیتے، ہم کیوں بیچتے تمہیں؟ ہم نے بیچا تو تمہاری مرضی سے تھا، تم بھاگ کیوں آئے ہو؟ ابھی تمہارا مالک آ رہا ہوگا، بے عزتی ہو جائے گی، تم کیوں بھاگ کے آ گئے ہو؟ آواز دی، میں بھاگ کے نہیں آیا ہوں، میرا نیا آقا مجھے خود یہاں لے کے آیا۔ کہا تو گھر کیوں بتایا؟ کہا میں نے گھر تھوڑی بتایا تھا، وہ میرا گھر پتہ نہیں کیسے جانتا ہے۔ میں تو آواز دی کہاں ہے؟ کہا وہ سامنے تو سوار کھڑا ہے، وہی تو ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی کیا میرے لال سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ آواز دی نہیں، جس کی تم فرش عزا بچھا رہے ہو میں وہی حسین ہوں، میں وہی زہرا کا لال ہوں، اجرکم الی الزہرا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ہاں،
आज़ादारी कैसे कैसे हम तक पहुंचाई गई, बेटों पहुंचा गया, तब आज़ादारी हम तक पहुंची है। इसकी कदर कीजिए मेरे अजीज़ों, ये बहुत अहम शय आपको मिली है, फ़ख्र किया कीजिए। ये आखिरी मजलिस है। अगर मेरे बयान से, मेरी तकरीरों से किसी को भी कोई तकलीफ़ हुई हो तो मैं हाथ जोड़ के उससे माफ़ी मांगता हूँ। हुसैन की दहलीज़ का एक छोटा सा नौकर समझ के उम्मीद करता हूँ कि ये अज़ादार मुझे माफ़ कर देंगे। शहज़ादी हक़ तो कोई अदा ही नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिशों को कबूल कीजिए। रोने में कमी ना कीजिएगा, पता नहीं अगला मुहर्रम किसे नसीब हो किसे नहीं। मैं तो मिंबर से यही दुआ करूँगा, क्योंकि इस साल हम वैसी अज़ा नहीं कर सके जैसी हर साल करते थे, इस वबा के दौर में, वबा की वजह से। तो हम यही दुआ करेंगे, परवरदिगार तुझे बीबी की टूटी हुई पसलियों का वास्ता है, कम से कम 1 साल तो आज़ादारों को और ज़िंदगी दे दे, ताकि ये अगले बरस वैसे ही मुहर्रम तो कर ले। ये आखिरी मुहर्रम ना हो हमारा, बस 1 साल की परवरदिगार, हम अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए नहीं ज़िंदगी मांग रहे हैं, हम सिर्फ हुसैन की अज़ा के लिए मांग रहे हैं कि हम वैसे ही आज़ादारी कर लें जैसे हर साल किया करते थे। रोइए, खुल के रोइएगा, मिंबर से कह रहा हूं, कोई ताज़ियाने नहीं मारेगा, कोई तमाचे नहीं मारेगा। आपको अगर रोते रोते प्यास लग गई तो पानी भी मिल जाएगा, अगर बहुत ज्यादा थक जाएंगे तो बिस्तर भी मिल जाएगा आराम के लिए। हाय ज़ैनब की गुर्बत, हाय सकीना की मजलूमी, हाय सैयद सज्जाद की बेकसी, खुदा इन आवाजों पर रहमत नाज़िल। थक गए ना आज़ादारों, वहां मजलिस सुनी, फिर अभी अबू तालिब में मजलिस सुनी, जुलूस में शरीक रहे, फिर यहां भी मजलिस सुन रहे हैं। थक गए ना? जरा ज़हरा से पूछिए, जो सिर्फ इस महुआ की आज़ादारी में नहीं शिरकत करती है, कायनात मेरी जगह जा रहे हैं तो आपकी पसलियां तो सलामत है। ज़हरा का एक हाथ पसलियों पाए, एक मजलिस से दूसरी मजलिस में, दूसरी से तीसरी मजलिस में बार बार कहती है, परवरदिगार इन अज़ादारों पर रहम नाज़िल कर। सकीना कहती है, काश ये एक चाहने वाले करबला में होते। हाँ, बहुत रोएंगे, रोने में शर्माइएगा नहीं, शर्माइएगा नहीं, कोताही न कीजिएगा। ये आंसू आपकी नजात का सामान है। बहुत कुछ चाहता था पढ़ने के लिए, लेकिन मैं वो सारी बातें नहीं पढ़ सका, फिर कभी अर्ज करेंगे। ये आप देख रहे हैं, जो लोग जियारत कर चुके हैं इनके जहन में है, जो नहीं है कर चुके अभी करेंगे जियारत। हुसैन का जुलजना है, अली असगर का गहवारा है, और एक जनाजा है। कितना जुल्म हुआ सुनेंगे। आपने यहां चंद परिंदे भी बिठा रखे हैं, कबूतर। कबूतर जानते हैं यही परिंदा आपने क्यों बिठाया? बहुत सारे परिंदे हैं ना, कबूतर ही क्यों लाए?
اس کی خاصیت جانتے ہیں نا؟ جب امام کے گلے پر خنجر چل گیا تو کبوتر نے دیکھا کہ گلا کتنا سوکھا ہوا ہے، رگیں کتنی سوکھی ہوئی ہیں، تو اڑتا تھا اپنی منقار میں، اپنی چونچ میں، اپنے دہن میں فرات سے پانی اٹھاتا تھا اور حسین کی گردن پہ ڈالتا تھا۔ حسین کی گردن پر پانی ڈال رہا تھا۔ ظالموں سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا، آواز دی اس کبوتر کو بھی مار دو۔ حسین کی راہ میں اس کبوتر نے بھی اپنی جان دے دی۔ اللہ اکبر۔ میں نے جناب علی اکبر کی مصیبت سنائی تھی، عرض نہیں کرنا ہے زیادہ، لیکن مجھ سے کہا گیا ہے تو صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، صرف اشارہ کر کے، مصائب نہیں پڑھوں گا جناب علی اکبر کے، اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ علی اکبر میدان میں آئے، بس صرف اشارہ کروں گا، شہادت نہیں پڑھوں گا۔ اس سے پہلے کا ایک واقعہ سناتا ہوں بچپن کا۔ جناب علی اکبر کے حسن کے چرچے پورے عرب میں ہو رہے تھے، کتنا خوبصورت کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ ایک شخص آتا ہے امام حسین کے پاس جناب علی اکبر کی زیارت کرنے، کہتا ہے آقا بیٹے کی زیارت کرا دیجئے۔ بیٹے کی زیارت ہو گئی تو وہ شخص کہتا ہے کہ آقا میرے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ ایک مجھے بھی ایسے ہی بیٹا دے دے۔ حسین رونے لگے، آواز دی آقا میں نے کوئی غلط سوال کر لیا؟ کہا تجھ سے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا آقا آپ میرے مولا ہیں، حکم کیجئے۔ آواز دی یہ بتا کہ اگر تجھے ایسا بیٹا مل جائے اور تمہارا وہ خوبصورت بیٹا دونوں ساتھ جا رہے ہوں اور جنگل میں پہنچیں اور جنگل میں اس بیٹے کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو کیا تم برداشت کر لو گے؟ اس نے کہا آقا میں دعا کروں گا کہ ایسا دن دیکھنے سے پہلے مجھے موت آ جائے۔ آواز دی پھر اب ایسے بیٹے کی دعا نہ کرنا، تمہیں ایک کانٹا برداشت نہیں کر سکتے، اس حسین سے پوچھو جوان کے سینے سے برچھی کی ہنی کو نکالنا ہے، کریل جوان کے لاشے کو ان ہاتھوں سے اٹھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ خصوصی طور پہ مجھ سے دو کے لیے کہا گیا ہے، دو مصائب کے لیے، وہی بس عرض کر کے گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ عزادارو تاریخ آخری مجلس ہے، پتہ نہیں اگلے برس کون زندہ رہے گا کون نہیں زندہ رہے گا، رونے میں کوئی کمی نہ کیجیے گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حسین میدان میں آتے ہیں جب کوئی نہ رہا، حسین میدان میں آتے آواز دیتے حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری امداد کو آئے، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے۔ تاریخ کہتی ہے حسین نے جیسے ہی یہ آواز بلند کی، خیموں سے رونے کی آواز آئی، حسین نے رہوار کا رخ خیمے کی طرف کیا، خیمے کے قریب آ کے آواز دیتے ہیں بہن زینب کیا کوئی بچہ پیاس کی وجہ سے مر گیا ہے؟ اے بیبیوں تم کیوں رو رہی ہو؟ بی بی زینب کہتی ہے آقا ارے میرے بھائی حسین آپ کی آواز استغاثہ پر علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا ہے، علی اصغر نے جھولے سے گرا دیا۔ آواز دی لاؤ میرے شہزادے کو، میرے لال کو میرے حوالے کر دو۔ علی اصغر کو حسین نے آغوش میں لیا، چاہا کہ خیمے سے باہر نکلے۔ عزادارو ایک مرتبہ ام رباب آگے بڑھی۔ اب عزادارو جو صاحب اولاد ہے کلیجہ سنبھال کے سنے، ایک مرتبہ جیسے ہی حسین چاہتے خیمے سے باہر نکلے، ام رباب آگے بڑھی، آواز دی میرے والی و وارث تھوڑی دیر کے لیے علی اصغر کو میرے حوالے کر دیجئے۔ علی اصغر کو آغوش میں لیا ام رباب نے اور خیمے کے کونے میں گئی اور جانے کے بعد علی اصغر کو اپنی گود میں لٹایا۔ ام رباب نے تین باتیں علی اصغر سے کی، تین
तीन बातें अली असगर से की। करबला की माएं अज़ादारों जैसी माएं हैं, उन पर जाने कुर्बान हो जाए, करबला की माओं पर अज़ादारों जाने कुर्बान हो जाए। सुनेंगे, कोई ये कही नहीं सकती है माँ जो करबला की माओं ने किया है। सुनेंगे, तारीख कहती है अली असगर की माँ ने, उम्मे रबाब ने तीन बातें की। अली असगर आगोश में है, आवाज दी, मेरे लाल अली असगर, तुम तो जानते हो कि अभी थोड़ी देर में तुम दादी फातिमा की गोद में जाओगे। जब दादी फातिमा की गोद में जाना तो मां रबाब की शिकायत न करना कि अम्मा रबाब ने मुझे पानी नहीं पिलाया, अम्मा रबाब ने पानी नहीं पिलाया। मेरे लाल, काश खैमे में पानी होता तो ये रबाब तुझे पानी जरूर पिलाती। दूसरी बात क्या कही, सुनेंगे, आवाज दी, अली असगर, तुम तो जानते हो कि तुम रबाब के लाल हो, हुसैन जहरा का लाल है। तुम रबाब के लखते जिगर हो, हुसैन जहरा का लखते जिगर है। मेरे लाल, जब तुम दादी सैयदा की गोद में जाओगे तो दादा अली जामे कौशल लेके आगे बढ़ेंगे। मेरे लाल, पानी ना पीना, इसलिए हुसैन प्यासा है। जब तक हुसैन जहरा का लाल पानी ना पी ले, मेरे लाल, पानी ना पीना। आखिरी बात क्या कही, सुनेंगे, आखिरी बात क्या कही, आवाज दी, मेरे लाल, मुझे करबला के बारे में तुम्हारे बाबा ने सब बताया है। मेरे लाल, अभी जब तुम मैदान में जाओगे तो तुम्हारी तरफ तीर रवाना होगा। जब तीर चले तो कोशिश करना कि तीर अपने जिस्म पर रोकना, जहरा के लाल के तीर न लगे, हुसैन के तीर न लगे। लीजिए अज़ादारों, तीन बातें कही। उसके बाद उम्मे रबाब ने अली असगर के बालों में उंगलियों से कंघी की, उंगलियों से बालों को सुधारा। एक लीजिए आका, अली असगर को हुसैन के हवाले किया। हुसैन मैदान में लेके आए, तफसील का वक्त नहीं है। पानी तलब किया, पानी तो ना मिला। तीन भाल का तीर चला। अरब में आज भी तीन भाल के तीर चलते हैं। आपको मालूम है, अरब में आज भी तीन भाल के तीर चलते हैं। मगर कब चलते हैं जानते हैं? जब कुर्बानी का वक्त आता है तो ऊंटों को नहर किया जाता है, ऊंट के गले पर तीर मारा जाता है, ऊंट के गले पर तीर मारा जाता है। जब वो तीर ऊंट की गर्दन पे पड़ता है तो खून बहता रहता है, इतना खून बह जाता है कि वो कमजोर होकर खुद बैठ जाता है। जब बैठ जाता है तो उसे ज़िबा किया जाता है। समझ गए ना कि तीन भाल का तीर अरब में किसके लिए होता है? अरे तीन भाल का तीर अरब में ऊंटों के लिए होता है, जानवरों के लिए। जो 6 महीने के बच्चे के गले पर मारा गया, वो तीर अरब में इंसानों के लिए नहीं होता है। अज़ादारों, तारीख कहती है कि हुसैन की आगोश में अली असगर एक मर्तबा तीर चला, अली असगर का गला छिदा, हुसैन के बाजू में लगा। एक मर्तबा अली असगर घूम के देखा, हुसैन के बाजू में तीर लगा है। उमर के बाबा के चेहरे को देखा, शायद अपनी ज़बाने बेज़बानी में कह रहे हो, बाबा इसकी शिकायत अम्मा से न करना, क्योंकि अम्मा ने कहा था तीर हुसैन के ना लगे। बाबा मैं क्या करता, गर्दन छोटी थी, तीर बड़ा। अजरुकुम अला ज़हरा। बाबा शायद अपनी बेज़बानी में अली असगर यही हुमक के कह रहे हो। अल्लाह अकबर। हुसैन लेके आए, अली असगर को लेके आए। अज़ादारों, अगर जनाबे अली असगर की मुसीबतें जो मैंने किताब में पढ़ी हैं वो पढ़ दूं ना तो सीने में जो गोश्त का दिल रखते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। अगर किसी के सीने में पत्थर भी है वो भी रो देगा। और गोश्त का दिल रखने वाला तो हो सकता है मर जाए, ऐसी दर्दनाक शहादत है जनाब अली असगर। कभी और अर्ज करेंगे, तफसील का चूंकि वक्त नहीं, मुझे खास तौर पे इमाम हुसैन की मुसीबत अर्ज करना। जनाब अली असगर को एक मर्तबा नहीं 3 बार शहीद किया गया। एक मर्तबा तीर से, एक बार नेज़े से और एक बार खंजर से। तीर हुसैन के हाथों पर अली असगर तीर मारा गया। जब सिपुर्दे खाक, यही तो एक लाशा हुसैन ने दफन किया था ना, लाशे को दफन किया गया तो नेज़ा बरदार चले थे ढूंढने के लिए अली असगर को। नेज़ा मारा और जब निकाला तो अली असगर का लाशा, उसके बाद गर्दन जुदा की गई खंजर से। तफसील फिर कभी अर्ज करूंगा। लीजिए, अली असगर की शहादत के बाद अब हुसैन
का कोई मददगार नहीं है, सब शहीद हो चुके। हुसैन खैमे में आए, बहन ज़ैनब तुम पा मेरा आखिरी सलाम, बहन उम्मे कुलसूम तुम पा मेरा आखिरी सलाम, लैला और रुकैया तुम पा मेरा आखिरी सलाम। एक एक को हुसैन सलाम करते हैं, एक मर्तबा आवाज़ देते हैं। अभी मैंने कुछ मसाइब अर्ज़ किए थे। तारीख़ कहती है कि एक मर्तबा दो सफ़े बनी, हुसैन निकले, सैयद सज्जाद के खैमे में आए। ए बेटा, जब कैद से छूट के जाना मेरे शियों को सलाम कह देना, कह देना जब ठंडा पानी पिए तो मुझ गरीब की प्यास को याद कर लें, कोई मुसीबत आन पड़े तो मुझ गरीब की मुसीबत को याद कर ले। लीजिए अज़ादारो, हुसैन आए खैमे से बाहर, अली जनाब सैयद सज्जाद के खैमे से बाहर आए, रहवार के करीब आए। अज़ादारो, तारीख़ कहती है कि हुसैन कभी दाएँ देखते थे, कभी बाएँ देखते थे। ज़ैनब समझ गई, आवाज़ दी, भैया अब वो अली अकबर ना रहे, अब्बास ना रहे, लेकिन ये ज़ैनब आपको सवार करेगी। मैंने यहाँ तक तो मसाइब वहाँ पढ़ दिए थे, अभी इससे कबल मजलिस जो पढ़ी मैंने उसमें मसाइब पढ़ दिए, लेकिन अब सुनना कलेजे संभाल के अज़ादारो, कलेजा संभाल के सुनिएगा। रवायत कहती है कि अब हुसैन को दो लोग सवार करते थे, दो लोग सवार करते थे, एक जनाबे अली अकबर और एक मौला अब्बास। बस यहाँ से कलेजे संभाल लेना अज़ादारो, बहुत सख्त मसाइब है, बर्दाश्त कर लेना। तारीख कहती है कि दो लोग सवार करते थे, एक जनाबे अली अकबर और एक मौला अब्बास। जनाबे अली अकबर हुसैन का बाजू पकड़ते थे, हुसैन का बाजू अली अकबर पकड़ते थे। अब्बास दिलावर क्या करते थे सुनेंगे? जिन रकाबों में पैर डाले जाते हैं उन रकाबों को अब्बास दिलावर पकड़ते थे। दो लोग हुसैन को सवार करते थे, अली अकबर बाजू पकड़ते थे, रकाबों को अब्बास पकड़ते थे। अब वो काम तो ज़ैनब ने किया जो अली अकबर करते थे, हुसैन के बाजू को ज़ैनब ने पकड़ लिया सवार करने के लिए, हुसैन के बाजू को ज़ैनब ने पकड़ा। अब रकाबों को कौन थामे? लिखा हुआ है एक मर्तबा एक बीबी आगे बढ़ी जिसने रकाबों को पकड़ लिया, अगर समझ गए तो रोते हुए उठेंगे, जिसने रकाबों को पकड़ लिया। हुसैन तड़प के आवाज देते हैं, ए बीबी तू कौन है? मैंने पहचाना नहीं, इसलिए मेरी आंखों का नूर तो अली अकबर ले गए। ए बीबी तारुफ तो करा, तू कौन है? आवाज दी, आका नहीं पहचाना। अरे मैं अब्बास की ज़ौजा लबाबा, मेरा शौहर आपको सवार करता था, इसलिए मैं सवार करने आई हूं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा इन आवाजों पर रहमत नाज़िल करे। लीजिए हुसैन सवार हुए, हुसैन सवार हुए। एक मर्तबा चाहा रहवार को आगे बढ़ाएं, रहवार आगे ना बढ़ा बल्कि इशारा किया, झुक के देखा तो 4 बरस की बच्ची सकीना घोड़े के सुमों से लिपटी बैन कर रही है। हुसैन ने समझाया, लीजिए सकीना को आखिरी बार सीने पर भी लिटाया। तारीख कहती है कि जब हुसैन दोबारा सवार हुए और चलने लगे, चहीती बेटी है ना सकीना, चहीती बेटी है ना सकीना, सीने पर सोने वाली बेटी है ना अज़ादारो। तारीख कहती है इस मंजर को मुलाहिजा कीजिएगा। तारीख कहती है कि जैसे ही हुसैन दोबारा सवार हुए और रहवार को भी 2 कदम बढ़ाया था कि दौड़ के सकीना आगे आ गई, दौड़ के रहवार के आगे आ गई सकीना। बाबा के चेहरे को देखती है, बाबा के चेहरे को देख के कहती है, बाबा बाबा बाबा, नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं सैदानियां बाहर, सीने पर सुलाएंगी तुम्हें रात को मादर। वो कहती है सोएंगे कहां फिर अली असगर। फरमाया कि बस जिद ना करो सदके मैं तुम पर, शब होएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी, असगर मेरे साथ आज वही सोएंगे बीबी। आवाज दी, बाबा मैं नहीं रोकूंगी, जाइए खुदा हाफिज। हुसैन चले, मैदान में आए, खुतबा दिया, उसके बाद अजीम जिहाद हुसैन ने किया। लड़ते लड़ते एक मर्तबा हुसैन फुरात के किनारे आ गए। आवाज दी, अब्बास क्या भाई की जंग ना देखोगे? लड़ते लड़ते मकामे अली अकबर पर पहुंचे। आवाज दी, अली अकबर, कासिम और न मोहम्मद, हबीबो ज़ुहैर, तुम तो मेरी एक आवाज पर लब्बाइक कहते थे, आज हुसैन बुला रहा है, क्यों नहीं बोलते?
अल्लाह अकबर। फिर हुसैन आवाज देते हैं, अब्बास ये तुम्हारी तरफ से हमला, अली अकबर ये तुम्हारी तरफ से हमला, कासिम ये तुम्हारी तरफ से हमला, और मोहम्मद ये तुम्हारी तरफ से हमला। हुसैन हमलों पे हमले कर रहे हैं। अल-अमान अल हफीज, अल-अमान अल हफीज की सदाएं बुलंद हो रही है। अज़ादारों, तारीख कहती है कि फौजें काफी दूर जा चुकी थी। अब कलेजा संभाल लेना, फौजें काफी दूर जा चुकी थी, फौजें काफी दूर जा चुकी थी, फौजें काफी, जिनके सीने में गोश्त का दिल है ना, अगर अपने को संभाल पाना तो संभाल लेना। फौजें दूर जा चुकी थी ना, लड़ते लड़ते फौजें दूर जा चुकी थी। एक मर्तबा निदाए गैब आ गई, हुसैन हुसैन शजाअत के जौहर दिखा चुके हो, अब सब्र के जौहर दिखा दो। चलती हुई तलवार को न्याम में रख चुके हैं हुसैन, अब तलवार नहीं निकलेगी। हुसैन चूंकि हुसैन के पास आवाज आ चुकी है, सब्र के जौहर दिखाना है ना, अब तलवार नहीं निकालना है। अदारो तारीख कहती है कि एक मर्तबा हुसैन रहवार पा है, फौजें दूर हैं, फौजें दूर हैं, जो समझ गया रोता हुआ उठेगा। अदारो फौजें दूर जा चुकी थी, हुसैन का सर झुका हुआ है। अल्लाह न करे कोई परदेश में अकेला हो, अल्लाह न करे कोई परदेश में तन्हा हो, अल्लाह न करे परदेश में मजलूम हो। सुनना आजादारो, एक मर्तबा हुसैन अकेले है, रहवार पा है, फौजें दूर जा चुकी थी। हुसैन ने सोचा कि लाओ देखे फौजें कहां तक आ गई हैं, फौजें दोबारा कहां तक आई। अब जो हुसैन ने सर को उठाया, एक जालिम ने पत्थर उठाया और हुसैन की पेशानी पर पत्थर मारा। जैसे ही पत्थर का मारना था, आवाज अम्मा ज़हरा, अम्मा, अम्मा, आपने जिसे चकिया पीस पीस के पाला, उस हुसैन को देखिए क्या जुल्म हो रहा है हुसैन पा। लीजिए अज़ादारो, पत्थर का लगना था कि चारों तरफ से हुसैन को घेर लिया गया। कोई नेज़े मारता है, कोई तलवारें मारता है, कोई तीर चलाता है, अज़ादारो कोई पत्थर मारता है। आप जानते हैं, आप जानते हैं, कभी एहसास किया है, अगर हमारी उंगली कट जाती है ना, उंगली में जख्म हो, तो उस पर गर्म चीज अगर कोई लग जाती है तो और ज्यादा दर्द में इजाफा हो जाता है, दर्द बढ़ जाता है। अगर खौलता हुआ पानी, गर्म पानी आप अपने जख्म पर डाल लें तो और ज्यादा दर्द होने लगता है। अब सुनेंगे हुसैन की मजलूमियत को, सुनेंगे। रवायत कहती है जो पत्थर लाए थे उन्होंने पत्थर मारे, जो नेज़े लाए थे नेज़े मारे, जिनके पास तलवारें थी तलवारें मारी, जो कुछ नहीं लाए थे वो करबला की जलती हुई रेत को उठाते थे और हुसैन के जख्मों पर डालते थे। करबला की रेत उठाते थे, हुसैन के जख्मों पर डालते थे। हुसैन तड़प रहे हैं, हुसैन तड़प रहे हैं। बस दो जुमले आज़ादारों सुनाना है, मजलिस तमाम हो रही है। हुसैन तड़प रहे। रवायत कहती है, आपने सुना है ना कि हुसैन रहवार पा कभी दाएं जाते थे, कभी बाएं जाते थे। हुसैन रहवार पा कभी दाहिने जाते थे, कभी बाएं जाते थे। वजह जानते हैं क्या है? वजह जानते हैं क्या है कि हुसैन कभी दाएं जाते थे, कभी बाएं जाते थे, कभी दाएं कभी बाएं। वजह क्या जानते हैं? एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखिएगा, एक लम्हे के लिए मेरी तरफ एक लम्हे के लिए देखिएगा। अज़ादारों, नेज़ा जानते हैं किसे कहते हैं? नेज़े की यूं तो बहुत सारी किस्में हैं, बहुत सारी किस्में हैं नेज़े की, लेकिन एक नेज़ा मैं बताने जा रहा हूं। नेज़ा जानते हैं किसे कहते हैं? नेज़े में आगे एक नुकीला हिस्सा होता है, आगे एक नुकीला हिस्सा, और पीछे उसमें थोड़ा सा पीछे चल के कांटे बने होते हैं जो पीछे की तरफ मुड़े होते हैं, पीछे की तरफ ऐसे नेज़ा होता है, ताकि वो नुकीला हिस्सा जब मारा जाए नेज़ा तो वो नुकीला हिस्सा जिस्म में जगह बनाए, और जब खींचा जाए तो हड्डियां हो के पसलियां। कांटे पीछे मुड़े हुए बने हैं ना, हड्डियां हो के पसलियां। अज़ादारों, जानते हैं, आपने सुना है ना कि हुसैन कभी दाएं जाते थे रहवार पा, कभी बाएं। क्यों? वजह क्या? वजह यह है कि एक नेज़ा बरदार का दस्ता दाहिनी तरफ से आया, एक बाईं तरफ से आया। इधर से दाहिनी तरफ से नेज़ा मारा, इधर से बाईं तरफ से नेज़ा मारा, अंदर जाके नेज़ा नेज़े में फंस गया। दाहिनी तरफ जालिम का हिस्सा था हुसैन, दाईं तरफ, बाईं तरफ जालिम का हिस्सा था हुसैन, बाईं तरफ। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हुसैन रहवार पर कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं। अज़ादारों, यहां तक के हुसैन से जब जीन पर ठहरा न गया तो एक मर्तबा झुके और रहवार के कान में एक जुमला कहा, आवाज दी, ए अस्पे बावफा, मुझे कहीं ऐसी जगह उतार दे जहां ज़िबा होते हुए मेरी बहन ज़ैनब ना देख सके।
कहीं ऐसी जगह उतार दे जहां ज़िबा होते हुए मेरी बहन ज़ैनब ना देख सके। लीजिए रहवार लेके चला, हुसैन की कत्लगाह तक आया। हुसैन ने अपनी कत्लगाह को पहचाना। लीजिए हुसैन कहा तो यही जाता है ना कि जीन से जमीन पर आए, मगर हुसैन जीन से जमीन पर कब आए थे? हुसैन तो तीरों पर मुअल्लक थे, हुसैन तो तीरों पर। अज़ादारो तारीख कहती है बस मजलिस तमाम हो गई, आखिरी जुमला सुने और मजलिस तमाम हो गई। अज़ादारो तारीख कहती है जितना रोना है रो लीजिए, पता नहीं अगले बरस कौन जिंदा रहे कौन नहीं। आखिरी जुमला सुने और उसके बाद फिर खत्म दुआ। अज़ादारो तारीख कहती कि हुसैन तीरों पर है, शिम्र खंजर लेके चला। खंजर कुंद नहीं था, खंजर कुंद नहीं था। खंजर चलाने का तरीका जानते हैं क्या है? खंजर चलाने का तरीका जानते हैं क्या है? कुर्बानी के वक्त आपने जानवर जब आप कुर्बान करते हैं, उसके गले पर जो छुरी चलाते हैं, इससे कुछ बड़ा खंजर होता है, और यही खंजर चलाने का तरीका है। खंजर चलाने का यही तरीका है। खंजर गले पर रखा जाता है और उसको आगे किया जाता है, पीछे आगे पीछे। ये खंजर चलाने का तरीका है, ये खंजर चलाने का तरीका है, ये तरीका था। मगर शिम्र ने हुसैन के गले पर खंजर कैसे चलाया जानते हैं? खंजर कैसे चलाया जानते हैं अज़ादारो? तारीख कहती है कि हुसैन के करीब आया। वो जुमले मैं नहीं कहूंगा, मेरी जबान जल जाएगी। अज़ादारो तारीख कहती है कि हुसैन के करीब आया, कुरान पर अपने जानू में नजिस रखा। अल्लाहु अकबर। इधर के तीर उधर, उधर के तीर इधर। एक मरतबा खंजर चलाना शुरू किया। कैसे? खंजर चलाने का तरीका, बस मजलिस तमाम हो गई है। खंजर चलाने का तरीका यह है कि खंजर को गले पर रखा जाता है, उसको कभी आगे किया जाता है कभी पीछे। लेकिन शिम्र ने हुसैन के गले पर खंजर रख के चलाया, ऐसे नहीं, बल्कि हुसैन के गले पर वो खंजर को मारता था। हुसैन के गले पर खंजर मारता था। रवायत कहती है 12 या 13 ज़रबों से मोहम्मद की बोसागाह को काटा। पहली मरतबा खंजर चलाया, आवाज दी नाना। हुसैन